السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 07۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور عارف کمرے سے نکل آئے۔ ہم تھوڑی دیر تک چہل قدمی کرتے رہے اور پھر کمرے میں واپس آ گئے، باوجود اس کے کہ میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا اور مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں نے ایک پرسکون رات گزاری۔ میرے اضطراب میں کافی کمی ہو گئی تھی۔ دوسری صبح جب میں اٹھا تو حشاش بشاش تھا۔ عارف ابھی تک سو رہا تھا۔ میں غسل خانے میں داخل ہو گیا اور پھر غسل سے فارغ ہو کر نکلا تو عارف جاگ چکا تھا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ اتنی دیر میں بیرا اخبار پہنچا گیا اور میں اخبارات کی سرخیاں دیکھنے لگا، اور پھر شہر کے ایک علاقے میں قتل ہو جانے والے دیپ چند نامی شخص کی خبر کی سرخی دیکھ کر میں چونک پڑا اور جلدی جلدی وہ خبر پڑھنے لگا۔ خبر میں لکھا تھا کہ دیپ چند کا ایک دوست جب اس سے ملنے آیا تو اس نے دروازہ کھلا دیکھا اور وہ اندر داخل ہوا تو اس نے صحن میں خون آلود جوتوں کے نشانات دیکھے، اور پھر جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیپ چند کی بے ہانش لاش دیکھی۔ دیپ چند کے جسم کو کسی دھار والے آلے سے بری طرح گود دیا گیا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ قاتل کوئی جنونی تھا۔ اس نے کسی شدید جذبے کے تحت ویپ چند کو قتل کیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم پر وار کرتا رہا۔ ویپ چند کے پڑوسیوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 فیشن ایبل نوجوانوں کو ویپ چند کے مکان میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور پھر انہیں نکلتے نہیں دیکھا گیا۔ پولیس نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ بہت جلد ویپ چند کے قاتل کا پتہ چلا لے گی۔ اس خبر کو پڑھ کر مجھے کوئی خاص وحشت نہیں ہوئی، تاہم ہلکا سا احساس ضرور ہوا تھا۔ میں نے اخبار عارف کے سامنے کر دیا اور عارف بھی اس خبر کو دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ پھر پوری خبر پڑھنے کے بعد اس نے کہا، در حقیقت ہم نے جوتوں کا خیال نہیں رکھا۔ بہرحال ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے ان جوتوں کو ضائع کر کے نئے جوتے خرید لیں گے۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ چلیں، دکانیں کھل گئی ہوں گی اور یوں بھی ہمیں 10 بجے کارڈ کے پاس پہنچنا ہے۔ اور ہم دونوں اٹھ گئے۔ ابھی ہم کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ دفتن عارف نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور میں چونک کر رک گیا۔ کیا بات ہے عارف؟ میں نے تعجب سے پوچھا، لیکن عارف میرا بازو پکڑ کر تیزی سے گھوم گیا۔ ہم راہداری کے دوسرے سرے کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب مجھے عارف کی اس حرکت کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں پر چڑھنے والی پولیس کی وردی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عارف کیا کرنے والا ہے۔ راہداری کی دوسری طرف کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ یہ راہداری ایک دوسری راہداری سے ملتی تھی جہاں اس جیسے کمرے موجود تھے۔ بہر صورت میں تیز قدموں سے عارف کے ساتھ چلتا ہوا اس دوسری راہداری میں پہنچ گیا۔ عارف کی تیز نظریں کسی چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر ایک کمرے کے سامنے رک گیا اور اس نے جیب سے ایک عجیب سا ساخت کا تار نکالا اور کمرے کا تالا کھولنے لگا۔ در حقیقت اپنے کام کا ماہر تھا۔ چشمے زون میں اس نے تالا کھول لیا اور میرا بازو پکڑ کر اندر دھکیلتے ہوئے بولا، بھائی جان، جلدی سے کمرے کی پشت پر کھلنے والی کھڑکی کھول دیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہ پایا تھا۔ دروازے پر مجھے چند سیکنڈ آہٹ محسوس ہوتی رہی اور پھر مجھے عارف کے الفاظ کا خیال آیا۔ میں تیزی سے کمرے کی پشت کی طرف دوڑا اور وہ کھڑکی کھول دی جو ہوٹل کی عقبی سمت ایک پتلی سی گلی میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کھول کر میں باہر جھانکنے لگا۔ اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ عارف کا مقصد نہ سمجھ سکتا۔ چند ہی لمحات کے بعد میں نے عارف کو سیمنٹ کے اس کمزور پائپ پر اترتے دیکھا جو گندے پانی کی نکاسی کے لیے لگے ہوئے تھے۔ عارف پائپ پر پاؤں جما رہا تھا۔ میں نے اضطراب کے عالم میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کوئی عارف کو دیکھ تو نہیں رہا۔ مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ دوسری طرف مجھے ان پائپس کا بھی خطرہ تھا۔ پتلے سیمنٹ کے پائپ تنو مند عارف کا بوجھ سنبھال بھی سکیں گے یا نہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ پر اصرار قوتیں بھی سفر کر رہی تھی، اس لیے بہت سے ایسے کام ہو جاتے جن کے بارے میں عقل ساتھ نہ دیتی۔
आरफ बखैर बखूबी खिड़की तक पहुंच गया और फिर मेरे हाथ का सहारा लेकर अंदर आ गया। अंदर आकर वो गहरी गहरी सांसें लेता रहा, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर खिड़की बंद करते हुए बोला, खिड़की से रोशनी अंदर आ रही है, इसलिए इसे बंद करना ही बेहतर है ताकि किसी को शुबा ना हो जाए। कमरे का मुकीन अगर अंदर आ गया तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये कमरे खाली हैं। देखिए अलमारी वगैरह भी खुली पड़ी है, अगर कोई इसमें मुकीम होता तो थोड़ा बहुत सामान ज़रूर होता। क्या तुमने बाहर से ताला दोबारा लगा दिया है? मैंने पूछा। जी हाँ, अब होटल के लोगों को गुमान भी नहीं होगा कि इस बंद कमरे में भी कोई मौजूद है, आरफ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि पुलिस 10 बजे से पहले वापस चली जाए ताकि हम कार्डो को दिए हुए वक़्त पर पहुंच सके। ना जाने उसकी लॉन्च किस वक़्त जा रही है, लेकिन पुलिस इतने सही पते पर पहुंची किस तरह? उनका अपना काम है भाईजान, उसी जहानत की तनख्वाह लेते हैं, हमें उनके नहीं अपने बारे में सोचना है। हम उनकी जहानत को शिकस्त देकर यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? आरफ ने कहा और अचानक उसके होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर किसी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया और किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कौन है? एक सख्त आवाज़ उभरी। मेरी बीवी है जनाब। किसी को इधर आते हुए देखा है? मैं कमरे में था, कैसे देख सकता था? दूसरी आवाज़ संभल गई। इस कमरे में कौन रहता है? और फिर उसी आवाज़ ने उस कमरे के दरवाजे पर कोई चीज़ मारते हुए कहा जिसमें ये दोनों मौजूद थे। ये तो 15 दिन से खाली है जनाब। एक तीसरी आवाज़ उभरी। फिर आखिर वो कहाँ मर गए? कान खोल कर सुन लो, मैं होटल के कमरे की तलाशी लूँगा, ये मेरी ड्यूटी है। मेरी गलत इतला नहीं थी और मैं उन लोगों को यहाँ से बरामद किए बगैर नहीं जाऊँगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन होटल के मेहमानों के एतराज़ के आप जवाबदा होंगे, तीसरी आवाज़ ने कहा। बारी बात फिर न सुनाई दी, अलबत्ता कदमों की आवाज़ें आगे बढ़ गई थी। मेरे चेहरे पर सनसनी के आसार थे, लेकिन आरफ काफ़ी दिलचस्पी से ये गुफ्तगू सुन रहा था। कोई ज़िद्दी पुलिस अफसर मालूम होता है। खैर कोई बात नहीं, वो भी क्या याद करेगा, आरफ ने कहा और एक सोफ़ा दरवाजे की तरफ घसीट कर उस पर बैठ गया। सोफ़ा घसीटने से थोड़ी सी आवाज़ पैदा हुई और मैंने चौंक कर आरफ की तरफ देखा, लेकिन आरफ मुस्कुरा दिया। बैठिए भाईजान, अब तो उनके दफ़ा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ठहरिए कि आप इन सीमेंट पाइप के ज़रिए नीचे उतर सकते हैं। क्यों नहीं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? नो रिस्क नो गेम भाईजान, हमें खतरा मोल लेना होगा। कार्डो के पास हर कीमत पर 10 बजे से पहले पहुंचना है। सिर्फ चंद मिनट इंतज़ार कर लें। मुमकिन है कि वो किसी कमरे की खिड़की से पुष्ट पर झांकें और उनके वापसी के बाद हम गली में उतर कर चल देंगे, वरना यहाँ तो वो लोग काफ़ी देर तक रुकेंगे। अफसर की बातों से यही अंदाज़ा होता था। मैंने एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बिलाशुबा आरफ इन मामलात में मुझसे ज़्यादा ज़हीन और तजर्बाकार था। वो पुलिस वालों की नफ्सियात से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ था। हम लोग मज़ीद कुछ देर इंतज़ार करते रहे। फिर आरफ ने कमरे की पुष्ट पर पहुंचकर खिड़की खोली और थोड़ी सी गर्दन निकालकर पहले होटल की पुष्ट पर ऊपर और फिर दाएं बाएं निगाह डाली, और फिर गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बज़ाहिर कोई नहीं था, लेकिन नहीं कहा जा सकता था कि कौन किस वक़्त खिड़की खोलकर गली में देखेगा। मुझे देख लें भाईजान, जिस तरह मैं उतरूं उसी तरह उतर आइए, आरफ ने कहा और छलावे की तरह खिड़की से बाहर निकल गया। मैं दौड़ता हुआ खिड़की पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आरफ किसी बंदर किसी फुर्ती से पाइप से नीचे फिसल रहा है। चंद लम्हात के बाद वो नीचे था और मेरे अंदर आरफ की सी फुर्ती तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल नीचे उतरने में मैंने भी देर नहीं की और फिर हम दोनों तेज़ी से गली से निकल आए। सड़क पर पहुंचकर हमने होटल के दरवाजे की तरफ देखा। पुलिस के कई सिपाही बाहर टहल रहे थे। कम वक्तों ने पूरी बटालियन के साथ हमला किया है, आरफ मुस्कुराते हुए बोला और हम लोग आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी नज़र आई और हम उसमें बैठकर चल पड़े। आरफ ने बंदरगाह का रास्ता बता दिया था। टैक्सी सड़कों पर दौड़ती रही। हमारी नज़रें सड़क के दोनों तरफ लगी हुई थी। कभी कभी हम पीछे भी देख लेते, लेकिन अभी तक खतरे की कोई अलामत नहीं थी। थोड़ी देर के बाद हम बंदरगाह के इलाके में पहुंच गए और फिर आरफ ने एक जगह टैक्सी रुकवा ली। हमने उतरकर बिल अदा किया और पैदल एक तरफ चल पड़े। वो सामने एक इमारत नज़र आ रही है और उसने एक मटियाली सी इमारत की तरफ इशारा करके कहा, वो कार्डियो का होटल है।
जहां खतरनाक किस्म के मलाह आते हैं और खुलेआम जुआ शराब चलती है, जबकि लाइसेंस सिर्फ होटल का है। आरफ ने मुझे बताया और मैंने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद हम होटल की इमारत के नज़दीक पहुंच गए। हम दोनों चौंका चेहरों से शरीफ नज़र आ रहे थे, इसलिए कुछ लोगों ने अजीब से अंदाज से हमें देखा। बहरहाल हम अंदर पहुंच गए और आरफ ने काउंटर क्लर्क के नज़दीक पहुंचकर कार्डों के बारे में पूछा। क्या काम है? काउंटर क्लर्क ने बिगड़े हुए लहजे में कहा और आरफ की बंद मुट्ठी उसके सामने खुल गई, जिसमें 100 रुपये का एक नोट था। तुम भूल गए दोस्त, कल मैं एक पैगाम छोड़ गया था और तुमने आज का वादा किया था, आरफ ने मुस्कुराते हुए कहा और काउंटर क्लर्क ने नोट लेकर जेब में रख लिया। फिर बोला, मुझे याद आ गया है। साले मगज से बात उतर गई थी और उसके साथ ही उसने एक घंटी बजाई और एक कवि हिकल आदमी बैरे के लिबास में उसके नज़दीक पहुंच गया। साहब, लोगों को कार्डो के साहब के पास पहुंचा दो। कवि हिकल बैरे ने गर्दन हिलाई और हम दोनों को गर्दन के इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहा। हम खामोशी से चल पड़े। वैसे मुझे इस खतरनाक माहौल का पूरा एहसास था, लेकिन अब किसी भी माहौल की हमारी नज़रों में कोई अहमियत नहीं रह गई थी। हम कातल थे, मफरूर कैदी थे और अभी ना जाने क्या कुछ करना था। एक राहदारी से गुजरकर हम एक हाल में पहुंचे जिसमें 3 दरवाजे नज़र आ रहे थे। दफतन बैरे ने अपने लिबास से 1.25 का पिस्तौल निकाल लिया और हमारी तरफ तान कर खड़ा हो गया। अपने हाथ बुलंद कर दो। इस अचानक वाक़े पर हम साकत रह गए थे। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? कवि हिकल बैरे ने पूछा और आरफ ने इत्मीनान की सांस ली और फिर उसने दोनों हाथ बुलंद करते हुए कहा, कोई नहीं है, तुम तलाशी ले सकते हो। बैरा आगे बढ़ आया और एक हाथ से उसने पिस्तौल संभाला और दूसरे से हम दोनों की तलाशी लेने लगा। फिर पिस्तौल वगैरह महसूस न करके उसने गर्दन हिलाई और हमें हाल के एक दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, किराए के बाद बदमाश और पुलिस वाले हमेशा उस्ताद कार्डों के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए हम तलाशी लिए बगैर किसी को उनसे नहीं मिलने देते। कोई बात नहीं है, आरफ जल्दी से बोला और हम दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गए। बैरा भी हमारे साथ था। अंदर पहुंचकर उसने किसी से कुछ कहा। उस्ताद, ये कल वाला आदमी है, पलटू ने आपसे तज़किरा किया था। ओहो, आने दो, एक सोफे से आवाज़ आई और जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और बैरे ने हम दोनों को इशारा किया। हम आगे बढ़कर उस शख्स के सामने पहुंच गए। सूरत से दर हकीकत खतरनाक आदमी मालूम होता था। चौड़ा चकला जिस्म, ठगना कद और चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात। क्या बात है, क्यों आए हो? बैठो, उसने इंतहाई नरम और महज़्ज़ब लहजे में कहा और हम दोनों शुक्रिया अदा करके बैठ गए। हम दुबई जाना चाहते हैं, सुना है कि आपकी लांचें ये काम कर सकती हैं, करती रहती हैं, लेकिन आजकल चेकिंग सख्त है, इसलिए मैंने काम रोक रखा है। अब लांचें सिर्फ सामान लाती और ले जाती हैं। हमारा जाना बेहद ज़रूरी है, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर, आरफ ने कहा। कोई वारदात करके फ़रार हो रहे हो? तजर्बाकार कार्डो मुस्कुराते हुए बोला, ये बात नहीं, दरअसल हमें एक बर्दा फरोश की तलाश है। वो हमारी बहन को ले गया है, हम चाहते हैं कि उससे अपनी बहन को वापस हासिल कर लें। बर्दा फरोश कौन है? क्या नाम है उसका? कार्डो ने चौंकते हुए पूछा। बिन फुरकान। ओ हाँ, और मुझे उसके आने की इतला मिली थी। मुझे भी उससे 2-2 हाथ करने थे, लेकिन यहाँ उसका पता नहीं चल सका और वो चोरों की तरह निकल गया। बहरहाल अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुलाहों की तरह जाना होगा। आम आदमियों के लिए आजकल गुंजाइश नहीं। हम तैयार हैं, आरफ जल्दी से बोला। वो 2000 रुपये निकालो, कार्डो ने कहा और मैं बुखला गया। इतनी रकम तो फ़िलहाल नहीं थी, लेकिन आरफ के बारे में मेरा अंदाज़ा गलत था। आरफ दर हकीकत माहिर फ़न हो गया था और उसने जेब से 100 के नोटों की एक गुड्डी निकाली और 4000 रुपये निकाल कर कार्डो के सामने डाल दिए। कार्डो ने नोट गिनकर जेब में डाले और फिर बोला, शहर में कोई काम तो नहीं? नहीं। क्यों? आरफ ने पूछा। तब फिर शाम तक होटल के कमरे में क़याम करो। 6 बजे एक लांच जा रही है और तुम्हें दुबई छोड़ती हुई निकल जाएगी। ठीक 5 बजे तैयार हो जाना। मेरा आदमी तुम्हें मलाहों के कपड़े दे देगा। तुम्हारा अपना कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, आरफ ने कहा और उसने बाहर की तरफ रुख करके किसी को आवाज़ दी। एक आदमी फ़ौरन अंदर आ गया। इन लोगों को कमरा नंबर 8 में पहुंचा दो, कोई तकलीफ़ ना हो। उस आदमी ने गर्दन हिला दी। छोटे से कमरे में हमने वक्त गुजारा। दर हकीकत उन लोगों ने हमारी काफ़ी मदारत की और फिर 5 बजे हम मलाहों के लिबास में होटल से निकल आए। एक खटारा किस्म की वैगन हमें लेकर चल पड़ी और हम एक दूर दराज साहल पर पहुंच गए।
जहां एक लांच मौजूद थी, जहां लांच के ड्राइवर से, जिसे कप्तान कहा जाता था और जो सूरत और शक्ल में कार्डो से मिलता जुलता था, हमारा तारफ़ कराया गया। ठीक 6 बजे लांच ने साहल छोड़ दिया और जब साहल हमारी निगाहों से उजल हो गया तो हम दोनों ने सुकून की सांस ली। आरफ मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा। खुदा का शुक्र है भाईजान, फ़िलहाल एक मुसीबत से तो जान छूट गई। हाँ, मैंने एक गहरी सांस ली। अब दूसरी मुसीबतें हमारी मुंतज़िर हैं। आरफ खामोशी से मेरी शक्ल देखने लगा और उसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार थे। मैं भी समुंदर में उठते हुए बगोलों को देखता रहा। शाम झुक रही थी और सूरज के गोले का आखिरी सिरा समुंदर में गुरूब हो रहा था। मुझे आने वाली मुश्किलात का एहसास तो था, लेकिन ना जाने क्यों कुदरती तौर पर मायूसी अब मेरे जहन से निकल गई थी। मैं पहले की तरह पस मुर्दा नहीं था। बासदियों का ख्याल अब भी मेरे जहन में आकर मेरे दिल को लर्जा देता था, लेकिन मैं उसके साथ ही अपने दिल में एक हिम्मत भी पाता, जैसे किसी नामालूम कुव्वत ने मेरे दिल को सहारा दिया हो। उसका महर क्या है? आरफ का साथ, बहन के असूल की ख्वाहिश या कोई और पुरइसरार कुव्वत? लेकिन मैं इसके बारे में फ़ैसला ना कर सका। अब रात हो गई थी। लांच की रफ्तार और तेज़ हो गई। हमें रात का खाना दिया गया, जो भुनी हुई मुर्गी की रानों, चावल और मीठे मीठे पर मुश्तमिल था। खाने के बाद उम्दा किस्म की काफ़ी मिली और फिर एक आदमी ने कहा कि अगर हम आराम करना चाहें तो जगह बता दी जाए। हम मलाहों के लिबास में ज़रूर थे, लेकिन हमसे मलाहों का काम नहीं लिया जा रहा था और लांच पर हमारे साथ दूसरों का रवैया भी अच्छा था। ये शायद बिन फुरकान के नाम से कार्डो की नफ़रत का नतीजा था, वरना इतनी आसानियाँ फराहम ना होती। रात आहिस्ता आहिस्ता बहती रही। लांच तेज़ रफ्तारी से सफ़र तय कर रही थी। समुंदर पर चांदनी चुटकी हुई थी और मैं और आरफ और उस सख्त और खुरदरी जगह पर सोने की मज़का खेज कोशिश कर रहे थे। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी नींद ना आई तो आरफ उठकर बैठ गया और उसने झुककर मुझे देखा और मैं बोल पड़ा, क्या बात है आरफ? मैं देख रहा हूँ भाईजान कि आपको नींद आई, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कहा, तब सोने की अदाकारी करने से क्या फ़ायदा, आइए रेलिंग के साथ खड़े हों। उसने कहा और मैं भी उठ गया। हम रेलिंग के साथ खड़े होकर बातें करने लगे और अब सबसे बड़ा मसला खैरियत के साथ दुबई में दाखिल होने का है। शहर में पहुंचने के बाद तो हम वहां क़याम की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन साहल से बचकर निकल जाना सबसे बड़ी बात है। जहां इतनी आसानियां फराहम हुई हैं आरफ, वहां कुदरत ये इंतज़ाम भी कर देगी। मैंने कहा, थोड़े गुनाह कर चुके हैं भाईजान, चंद बेगुनाह भी हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। क्या अब भी कुदरत हमारी मदद करेगी? हमने गुनाह पर गुनाह बराए गुनाह नहीं किए हैं आरफ, बल्कि उसके लिए मजबूर कर दिए गए हैं। मुझे खुदा पर भरोसा है, वो मेरे दिल का हाल जानता है और फिर हमारे साथ कुछ दुआएं भी हैं। तुम यकीन रखो, हम हर मंजिल से गुजर जाएंगे। मैंने बड़े वसूख से कहा और मेरी इस बात से आरफ का चेहरा शगुफ्ता हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन हो गए। हम दोनों काफ़ी देर तक उसी तरह गुफ्तगू करते रहे और अचानक दूर, बहुत दूर कुछ रोशनियां नजर आईं। गो समुंदर साफ था और चांदनी में चमक रहा था, लेकिन ये रोशनियां इतनी दूर थी कि हम उनके बारे में कोई अंदाज़ा ना लगा सके। लेकिन लांच में अबतरी फैल गई। शायद वो लोग इस रोशनियों का मकसद समझ गए थे, जो बराबर जल और बुझ रही थी। मलाह इधर से उधर दौड़ने लगे। एक आदमी हमारे करीब से गुजरा और मैंने उसे रोककर पूछा, क्या बात है? बहरी पुलिस, हम एक मुल्क के करीब से गुजर रहे हैं। शायद उसकी बहरी पुलिस ने हमें देख लिया है। अब क्या होगा? मुकाबला, उसने कहा और आगे बढ़ गया। इतनी देर में लांच का ड्राइवर कप्तान हमारे पास आया और फूले हुए सांस के साथ बोला, क्या आप लोग राइफलें चलाना जानते हैं? उनसे बचकर निकल जाने में ही हमारी आफियत है, वरना। हाँ, हमें राइफलें दे दो, आरफ ने कहा और कप्तान दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। फिर हम लोगों को भी कारतूसों की काफ़ी तादाद और 2 अदद राइफलें दे दी गईं और उसके साथ ही एक मोर्चा भी हमारे सुपुर्द कर दिया गया। दूर नज़र आती हुई रोशनियां अब करीब आती जा रही थी। हालात एकदम बिगड़ गए हैं भाई साहब। क्या ख्याल है, मुकाबला करें या? वो चंद सायत रुका और फिर बोला, निकल जाने की कोशिश करें। निकल कैसे जाओगे? चारों तरफ समुंदर है, मैंने हैरत से कहा। आरफ किसी सोच में गुम था और फिर वो गर्दन झटकते हुए बोला,
देखा जाएगा, पहले हालात देखते हैं। अगर पुलिस इन लोगों पर भारी पड़ी तो हम निकलने की कोशिश करेंगे। और फिर उसने पुलिस की बड़ी लांच पर नजरें जमा दी। पुलिस की लांच काफ़ी तेज़ रफ्तार थी और करीब से करीब तर आती जा रही थी। उधर कार्डो के साथियों ने अपनी लांच की रफ्तार सुस्त कर दी और इस तरह वो पुलिस वालों को धोखे में डाल रहे थे कि अगर वो भागने की कोशिश करते तो पुलिस को यकीन हो जाता कि वो स्मगलर वगैरह हैं। फिर पुलिस लांच मेगाफोन पर एक आवाज़ उभरी, कौन हो तुम लोग? रोशनी का जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो, वरना हम तुम्हें स्मगलर समझकर फायरिंग शुरू कर देंगे। और फौरन ही कप्तान की आवाज़ भी मेगाफोन पर उभरी, हमारी रोशनी का सिस्टम ख़राब हो गया है। हमें खतरा था कि तुम दूर से ही फायरिंग ना शुरू कर दो। हमें मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद करो। तुम कौन लोग हो? पूछा गया। ये एक तिजारती लांच है, हमारे पास लाइसेंस मौजूद है, तुम देख सकते हो, कप्तान ने कहा। और पुलिस की लांच और करीब आने लगी। बहुत से लोग सामने रेलिंग पर आ खड़े हुए और वो भी मसला थे और उस लांच के आदमी बदस्तूर मोर्चा लिए बैठे थे। दफतन कप्तान की आवाज़ गूंजी, फायर, और उसके साथ ही पुलिस लांच पर गोलियां बरस पड़ी। पुलिस लांच से बेशुमार चीखें उभरी और उधर से बराबर फायरिंग हो रही थी और पुलिस लांच पर अबतरी फैल गई। उसके साथ ही अचानक लांच के इंजन स्टार्ट हो गए और लांच तीर की तरह आगे बढ़ी। दर हकीकत कप्तान ने बड़े होशियारी से काम किया था। पुलिस को मुसीबत में डालकर निकल जाने की ये तरकीब बहुत उम्दा थी, लेकिन बहुत जल्द पुलिस वाले भी संभल गए। लांच राइफलों की रेंज से निकल गई थी, या फिर शायद उनके पास इतने आदमी नहीं रहे थे कि वो राइफलों से मुकाबला करते। इसलिए एक गर्जदार आवाज़ सुनाई दी और एक खौफनाक गोला लांच के पिछले सिरे पर लगा। एक ज़बरदस्त झटके से लोग इधर उधर गिर पड़े। मैं और आरफ भी लड़ गए थे और राइफल आरफ के हाथ से निकलकर समुंदर में जा पड़ी। पुलिस लांच अब बाकायदा ताक़ब कर रही थी और उसमें लगी हुई तोप गोले बरसा रही थी। ये किस्मत ही थी कि पहले गोले के बाद कोई और गोला अभी तक लांच में नहीं लगा था, लेकिन पहले ही गोले ने लांच को जिस कदर नुकसान पहुंचाया था उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बिलाशुबा कप्तान एक माहिर मल्लाह था। ये लांच पुलिस लांच से हल्की थी। कप्तान समुंदर ही से उसे लहरें देता हुआ आगे बढ़ रहा था ताकि गोला उस पर ना पड़ सके, और चौंका पुलिस लांच इतनी फुर्ती से ना मुड़ सकती थी, इसलिए उसके बरसाए हुए गोले बेकार जा रहे थे। बहरहाल उसने पीछा नहीं छोड़ा था। लांच की तमाम रोशनियां गुल थी, लेकिन चांदनी में वो साफ नजर आ रही थी। पुलिस लांच वालों की तरफ से अचानक गोलाबारी बंद हो गई। शायद उन्होंने मगालते में डालने के लिए ऐसा किया था, या फिर उनका कोई और प्रोग्राम था, क्योंकि लांच की रफ्तार अचानक तेज़ हो गई और तेज़ रफ्तारी में ये लांच पुलिस लांच का मुकाबला नहीं कर सकती थी। चुनाचा फासला कम होने लगा, लेकिन इसके साथ ही शायद पुलिस लांच वाला निशाना भी दुरुस्त कर रहे थे, क्योंकि कई मिनट की भाग दौड़ के बाद जबकि लांच वाले तोप के खतरे से बाहर हो गए थे, अचानक एक धमाका सुनाई दिया और इस बार गोला लांच के वस्त में आकर गिरा था। कई चीखें सुनाई दी और लांच के इंजन बंद हो गए। गोले ने कप्तान के कैप्टन का नामो निशान मिटा दिया था और उसके साथ ही तेजी से लांच में पानी भरने लगा। आरफ ने भी बिजली की तरह मेरे हाथ से राइफल झपट कर फेंक दी और मेरा बाजू पकड़कर झुके झुके एक तरफ दौड़ने लगा। लांच के पिछले सिरे पर पहुंचकर उसने लांच से बंधे हुए ट्यूब खोले। कुछ और लोग भी उस ट्यूबों को हासिल कर रहे थे और उनके मुकाबले के लिए मैं डट गया और मेरी ताकतवर घोंसों ने उन लोगों को बदहवास कर दिया। इतनी देर में आरफ दोनों ट्यूब खोल चुका था और उसने ट्यूबों के साथ रस्सियां भी बांध लीं। आखिरी आदमी को ज़ाहिर करने के लिए उसने भी मेरा साथ दिया। पुलिस लांच से अब मशीन गन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और हमारी लांच पर चीखें गूंजने लगी थी। संभालिए भाईजान, आरफ ने कहा, और हम दोनों ने ट्यूब गर्दन से पहनकर समुंदर में छलांग लगा दी। हमारी इंतहाई कोशिश थी कि लांच से ज़्यादा दूर हो जाएं। समुंदर में उतरने के बाद मुझे आरफ की एक और जहानत अमीज़ कार्रवाई का एहसास हुआ। आरफ ने दोनों टीमों के दरमियान एक रस्सा बांध लिया था ताकि समुंदर में एक दूसरे से अलग ना हों, और इस तरह मौत के मुंह में जाते हुए भी एक भाई की मोहब्बत का एहसास मेरे रगो वपे में सरायत कर गया था। हम लोग पूरी हिम्मत और ताकत सिर्फ करके लांच की मुखालफ सिमत तैरने लगे। दोनों लांचों में जंग हो रही थी और ये अच्छी बात थी, और इस दौरान हमें दूर निकल आने का मौका मिल गया था, यहाँ तक कि धमाकों की आवाज़ मादूम हो गई। हम बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहे थे। हमारे सामने कोई मंजिल नहीं थी, बीकरां समंदर।
ऐसे लगता था कि जैसे हम दो इंसानों के अलावा कोई जानदार ना हो और पूरी दुनिया एक समंदर हो। चांद का सफ़र जारी रहा। हम लोगों ने खुद को लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। हमारे हाथ पांव शल हो गए थे और अब सिर्फ ट्यूब हमें संभाले हुए थी। रात गुजरी और वो मशरक से सुबह नमूदार होने लगी और इस तरह सिमत का तयन हो गया, लेकिन हमारे सामने उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। अभी नहीं कह सकते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लहरें किस तरफ हमें ले जा रही हैं। सूरज उभर आया और उसके साथ ही हमारे दिलों में उम्मीद का एक आफताब रोशन हो गया। काफ़ी दूर सूरज की किरणों ने एक बादबान हमारी निगाहों में चमका दिया। यकीनन वो किसी कश्ती का बादबान था। मैंने आरफ की तरफ देखा। आरफ भी बादबान को देख रहा था और फिर वो लरजते हुए लहजे में बोला, क्या आप उसे देख रहे हैं भाईजान? हाँ आरफ, हमें अपनी कुव्वत समेट कर उस तरफ चलना होगा, मैंने कहा। और मैं खुद भी यही कहने वाला था भाईजान। वो बहुत दूर है, दूसरे किसी ज़राए से हम उसे मुतवज्जा नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद उस तक चलना होगा। तो आओ, मैंने कहा और दोनों बाजू और पैरों के इस्तेमाल से आगे बढ़ने लगे। मेरी इस हिम्मत से आरफ की भी हिम्मत बंधी और हम पूरी कुव्वत से बादबान की तरफ बढ़ने लगे। हवा मेहरबान थी और वो भी हमें उस तरफ धकेल रही थी, इसलिए ज़्यादा कुव्वत ना सिर्फ करनी पड़ी और अब हमें वो छोटी सी कश्ती नज़र आने लगी जिसका वो बादबान था। कुछ और करीब पहुंचने के बाद हमें कश्ती में बैठा हुआ एक आदमी भी नज़र आया जो शायद मछलियां पकड़ रहा था। उसकी निगाह भी हम दोनों पर पड़ गई, लेकिन उसने किसी किस्म की गर्म जोशी का इजहार ना किया और उसी तरह बैठा सपाट नज़रों से हमें देखता रहा। लेकिन उस वक़्त उसकी नज़रों से हमें क्या लेना था, और यूं तो ज़िंदगी बच जाने की खुशी थी। चुनाचा हम उसके करीब पहुंच गए। हमें मदद की ज़रूरत है, क्या हम तुम्हारी कश्ती में आ सकते हैं? आओ, उसने सर्द लहजे में कहा और हम दोनों ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर हमने ट्यूब अपने जिस्मों से अलग किए और कश्ती में लंबे लंबे लेट गए। हमें ज़बरदस्त थकन का एहसास हुआ था। कश्ती में बैठा हुआ तन्हा आदमी बदस्तूर डोरी डाले बैठा रहा। अजीब बेहिस इंसान था। उसने हमसे हमारे बारे में भी नहीं पूछा। करीब ही मछलियों की बसांद आ रही थी। हमने नज़रें घुमाकर देखा। 10-12 मछलियाँ रखी हुई थी जो शायद उसने अभी पकड़ी थीं। काफ़ी देर तक हम लोग कश्ती में लेटे रहे। फिर मैं उठ गया और इस दौरान उसने वो 2 मछलियाँ और पकड़ी थीं। सुनो दोस्त, मैंने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखकर उसे मुखातब किया और उसने लंबी गर्दन घुमाकर हमें देखा। उसके बदन से बदबू के भभके उड़ रहे थे, आंखें फैली फैली और चेहरा अजीब गलीज किस्म का था। ना जाने क्यों मुझे उससे शदीद कराहत महसूस हुई। क्या बात है? उसने फटी फटी आवाज़ में कहा। क्या खुशकी यहाँ से करीब है? 7 मील दूर है। वो जनूब में बाएं सिमत, उसने कहा, और मैंने उसके इशारे पर उस लकीर की तरफ देखा जो दूर से सिर्फ एक लकीर नज़र आ रही थी। अगर तुम इस वक्त मछलियां पकड़ने का इरादा तर्क कर दो और हमें साहल पर पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने मछलियों की तरफ देखा और फिर गर्दन हिलाकर उठ गया। गो उसका रवैया बहुत खुश्क था और उसकी हैबत निहायत बदनुमा थी, लेकिन उसके तावन से हम खुश हुए और उसने बादबान का रुख मोड़ दिया। कश्ती उस जजीरे की तरफ बढ़ने लगी। आरफ भी उठकर बैठ गया था। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके पास ही बैठ गए। वो कौन सा जजीरा है? मैंने पूछा। बाबा बामा, उसने मुक्त से जवाब दिया। कितनी आबादी है उसकी? आरफ ने पूछा। लेकिन इस बात का कोई जवाब ना मिला और उसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। हम दोनों खामोश हो गए। कश्ती साहल की तरफ बहती रही और लकीर वाज़ेह हो गई। हम जजीरे पर झूमने वाला दरख्त देख रहे थे, कहीं कहीं टेले भी नजर आ रहे थे और आखिरकार कश्ती साहल पर पहुंच गई। हम दोनों ने पानी में कूदकर अपने पैरों के नीचे ज़मीन महसूस की और हमारे दिल मुसर्रत से लबरेज हो गए। हम कई खतरात से जिंदा सलामत निकल आए थे। हमारा करीम मौसम भी हमारे साथ साथ नीचे उतर आया और उसने घसीट कर कश्ती के एक खोंटे से बांध दी थी जो साहल की रेत में गड़े हुए थे, और गर्दन से हमें साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। उसकी चाल भी बड़ी मज़का खेज थी। बहरहाल हम उसके साथ चलते हुए रेत की बुलंदी तय करने लगे। फिर ढलान शुरू हो गया। ढलान पर हमें खजूर और ताड़ के बेशुमार दरख्त नजर आए जिन्हें देखकर काफ़ी मसरत हुई। गोया ग़िज़ाई मसला भी नहीं था। दरख्तों के दरमियान से गुजरकर आखिरकार एक चकोर से मकान के नज़दीक पहुंच गए और उस जजीरे पर ऐसे मकान को देखकर हमें हैरत हुई।
वो किसी अस्तबल की तरह था, लेकिन उसकी दीवारें छोटी ईंटों से बनी हुई और काफ़ी मजबूत थीं। अंदर दाखिल होने का सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा था। हमारे गलीज मेज़बान ने दरवाजे से अंदर दाखिल होकर हमारी तरफ देखा, गोया अंदर आने की दावत दे रहा हो, और हम उस मकान में दाखिल हो गए। लेकिन अंदर कदम रखते ही हमें अपना सांस बंद कर लेने पड़े। मकान क्या था, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अस्तबल नुमा था, लेकिन किसी अस्तबल में उसकी अशर अशीर भी बू ना होगी। चारों तरफ से सड़ांध उठ रही थी और उसके अलावा तारीकी भी फैली हुई थी, जिसकी वजह से कुछ नज़र ना आ रहा था। हमारा मेज़बान भी हमारे साथ अंदर आया था, लेकिन अब वो भी नज़र नहीं आ रहा था। आरफ, मैंने घबराए हुए अंदाज में आरफ को आवाज़ दी। जी भाई साहब, आरफ घुटी घुटी आवाज़ में बोला। बदबू की वजह से उसे खांसी उठ रही थी। निकल चलो यहाँ से, यहाँ रुकना मुश्किल है, मैंने कहा, और आरफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन अचानक रोशनी की वो लकीर जो खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी गायब हो गई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। हम दोनों ही दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन मजबूत दरवाज़ा बाहर से बंद था। क्या हुआ आरफ? मेरे मुंह से डूबती हुई आवाज़ निकली, और उस घुटन और बदबू में तो हम मर जाएंगे। इससे कबल कि आरफ कोई जवाब दे, एक कोने में मिट्टी के तेल का चिराग रोशन हो गया और अस्तबल नुमा मकान में जर्द और मदकूक सी रोशनी फैल गई। चिराग रोशन करने वाला हमारा मौसन ही था, और हमने उसे हैरत और खौफ से देखा। अगर वो अंदर है तो बाहर दरवाज़ा किसने बंद किया?